Okay, so now we'll start the last method under this unit 3 and under the topic numerical solution of ordinary differential equation, and that method is Ranjikuta method for fourth order. Okay, so that is all about this last part. We have covered the Euler's method, we have covered the modified Euler's method. Okay, so these two methods are almost similar, only the formula is different. In modified Euler's method, first we have to find that value of y1 or value of y2, okay, using the Euler's formula. तो पहले आपको y1 raised to 0 or I can say 0th iteration, okay, that you have to calculate from the Euler's formula, and then using modified Euler method you have to calculate the first iteration, second iteration, third iteration and so on. Okay, and जैसे आपको समझ में आता है कि in last two iteration the values of y1 is exactly same. At that time you have to stop your iteration. Okay, that is the idea behind modified Euler's method. Okay, and now the last method is Ranjikuta method of fourth order. Okay, so in this method also step by step we first calculate y1. Okay, so there is a separate formula for y1. After that we calculate y2. Okay, after that we calculate y3 and so on. Okay, so step by step you have to calculate either y1, y2, y3 and so on. Okay, why here we are not calculating y0 because y0 and x0 are already there in the given example. Okay, that's why we have to start from the first iteration y1, y2, y3 and so on. Okay, so again idea is similar to that last topic. This is your given differential equation. So we have given a first order ordinary differential equation of the type dy by dx is equal to f of xy with one initial condition, that is y at x0 is equal to y0. Our target is what? We have to find either y1 का मीनिंग क्या होता है? y1 means what? Y at certain point. So y at x1 we call it as y1, or either we have to find y2, that is nothing but y at a certain point which is say x2. So that is our aim. Okay, so in this method also we calculate a solution y of the ordinary differential equation at a particular point x, that I already explained to you. So okay, that means what? y1 means what? Y at x1, y2 means what? Y at x2, y3 means what? Y at x3 and so on. That is our aim, or that is our claim to learn this topic, Ranjikuta method of fourth order. Okay, so now we are ready to define all these formulas under this method. So first is what? Formula to find the value of y1. Okay, so again there are separate formulas for y1, y2 and so on. Okay, directly मैं n में formula आपको नहीं देने वाला हूँ, जैसे yn का मैंने Euler's formula आपको दिया था. That is the in general formula. Okay, that same. So just by considering n equal to 1, 2 and so on, you can find the values of y1, y2, y3 and so on. Okay, but in modified Euler method we have write a separate formula for y1, separate formula for y2, separate formula for y3 and so on, like that. So in a similar manner here also I am considering a separate formula for y1, y2 and like that. ठीक है, जनरली मॉडिफाइड ऑयलर एंड रंजकुटा मेथड में जनरली आइदर आपको y1 या y2 इन दोनों तक ही कैलकुलेशन आता है. ठीक है, तो ज़्यादा कुछ फॉर्मूले इसमें प्रिपेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है. जस्ट स्टिक विद आइदर y1 एंड y2, या ज़्यादा से ज़्यादा y1 आता है या ज़्यादा से ज़्यादा y2 तक आपको कैलकुलेशन आते हैं. सो अप टू y2 ओनली यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोज रिजल्ट्स, ऑल दोज फॉर्मूलेस. ओके, so here also in this Ranjikuta method we will focus on only y1 and y2. ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ तक ही आने वाला है. इसके आगे के जो फॉर्मूलेज है y3, y4 एंड सो ऑन, आप इजीली y1 मतलब एट दैट यू टू रिमेंबर ओनली वन फार्मूला. अगर आप y1 का ही फार्मूला याद रखते हो देन यू कैन इजीली राइट फार्मूला फॉर y2. ठीक है, एंड देन यू कैन इजीली राइट फार्मूला फॉर y3. बट एज फार एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, ओके, यू हैव टू प्रिपेयर एग्जाम्पल्स अप टू y2 ओनली. ज़्यादा से ज़्यादा y2 तक ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, y3, y4 के जनरली नहीं आते. ठीक है, चलो. So let's start with the formulas for y1 under this Ranjikuta method of fourth order. ठीक है, so here I define one unknown, or I can say one constant, that is say k1, which is h multiplied by f at x0, y0. Okay, remember these all formulas are only for y1. I'm talking about only y1. So here I define first k1, which is h multiplied by f at x0, y0. Now I define k2, which is h multiplied by f at x0 plus h by 2, comma y0 plus k1 by 2. So we have to consider this k1 from this previous calculation. Okay, now we define k3, which is h multiplied by f in bracket x0 plus h by 2, comma y0 plus k2 by 2.
Okay, again where we have to consider this k2 from this previous calculation. We define k4 which is h multiplied by f at x0 plus h comma y0 plus k3, where we have to consider this k3 from the previous calculation. So these are my four unknowns, my four values k1, k2, k3 and k4. Therefore, okay, your k become, okay, so why we calculate this k1, k2, k3, k4? Because at that we have to find the k. Okay, this is the Ranjikuta constant. Okay, so that k is equal to 1 by 6 times k1 plus 2 times k2 plus 2 times k3 plus k4. Okay, and then so after doing all these calculations, okay, what is value of y1? So that y1 is equal to y0 plus k. Okay, yeah, simply इस method में, okay, under this method, under this Ranjikuta method, just from y0 you can calculate that y1. ठीक है, ये इन दोनों में चेंज आप देखो क्या है, y0 का मीनिंग क्या होता है, y at x0 जो गिवन होता है. ओके, आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है y1 जिसका मीनिंग होता है y at x1. आपके पास x1 की वैल्यू रहती है, फॉर एग्जांपल से x1 is 2, तो क्वेश्चन क्या होगा, कैलकुलेट y at 0.2. ओके, बट ये जो चीज़ आप कर रहे हो, ओके, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y1 आप y0 का यूज़ कर सकते हो. ओके, बस y0 में क्या ऐड करो, k ऐड करो. दैट इज ऑल अबाउट Ranjikuta मेथड. बट वो k क्या होता है, to calculate that k we need all this calculation. तो k क्या होता है, 1 by 6 times k1 plus 2 k2 plus 2 k3 plus k4, where k1 k2 k3 k4 are like this. ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, this y1, so the calculation of y1 is totally depend on x0 and y0. आप देखो सारे फॉर्मूलाज में x0 and y0 में ही टर्म्स आ रहे हैं. so this y1, the calculation of y1 is totally depend on the x0 and y0. okay, so how you define the formulas for y2? okay, तो आपको पता है कि क्या करना है, जैसे आपने प्रीवियस में चेंज किया था वैसे ही जब आप y2 कैलकुलेट करते हो, y2 कैलकुलेट करते समय आपके पास क्या चाहिए, x1 चाहिए जो गिवन होगा, या जो आप कैलकुलेट कर सकते हो x0 से सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है. अगर आपके पास x0 गिवन है तो आप x1 x2 x3 x4 ये सारे नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हो. बट y0 या y0 से y1 y2 y3 कैलकुलेट करने के लिए सारे मेथड से आपको, ठीक है, तो आपको अगर y2 कैलकुलेट करना है तो आपके पास x1 एंड y1 रेडीमेड चाहिए. ठीक है, ये तो आप एक तो आप क्या करो, अगर आपने y1 पहले ही कैलकुलेट किया है तो यहाँ से आप y1 कंसिडर कर सकते हो. अगर आपको उस क्वेश्चन में कहीं पे भी y1 का कैलकुलेशन करना ही नहीं था, डायरेक्टली आपको y2 कैलकुलेट करना है. सो इन दैट केस एग्जाम्पल में कहीं पे तो मेंशन होगा कि टेक y1 इज इक्वल टू दिस. मतलब डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन में इन दोनों का कैलकुलेशन नहीं आने वाला. ठीक है, या जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई कैन टेक दैट एग्जाम्पल. बट ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक तो y1 कैलकुलेट करना है या y2 कैलकुलेट करना है, या एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें ये दोनों चीज़ें रहेगी y1 एंड y2. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें डायरेक्टली y2 कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे क्वेश्चन में ही y1 की वन होगी. ठीक है, बिकॉज द रिक्वायरमेंट फॉर y2 इज व्हाट x1 एंड y1. जब भी आपको y2 का कैलकुलेशन करना है आपको x1 एंड y1 की वैल्यू पता होनी चाहिए. सो बस करना क्या, x1 x0 की जगह पे x1 रख दो, y0 की जगह पे y1 रख दो, हो गया. दैट इज ऑल अबाउट दी y2. सो आई विल नॉट रिपीट ऑल द स्टेप्स, है ना. k1 इज h मल्टीप्लाई बाय f एट x1 y1, k2 इज दिस. ओके, बस x0 की जगह पे x1 आ रहा है, y0 की जगह पे y1 आ रहा है. अदरवाइज फॉर्मूलाज आर ऑलमोस्ट similar. And then the last case where y2 is equal to, so here I calculate this y2 from y1, therefore here y2 is equal to y1 plus k. ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि एट द एंड यू हैव टू रिमेंबर ओनली फॉर्मूला फॉर y1, नो नीड टू रिमेंबर दी फॉर्मूलाज फॉर y2, क्योंकि बस चेंज क्या करना है, y1 है तो x0 y0, y2 है तो ओके, इट मीन्स व्हाट, जब भी आपको y1 कैलकुलेट करना है जस्ट फोकस ऑन x0 एंड y0, और जब भी आपको y2 कैलकुलेट करना है जस्ट फोकस ऑन x1 एंड y1. एंड in similar manner if you want to calculate y3 then you have to consider x2 and y2. okay, so let's take some example, उससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. so let's take the first example. apply the fourth order Ranjikuta मेथड. क्या है फोर्थ ऑर्डर में, मतलब फोर्थ ऑर्डर, ये जो वर्ड आ रहा है फोर्थ ऑर्डर, इसका लॉजिक क्या है, k1 k2 k3 ये 4 अननोन्स आप ले रहे हो ना. Therefore, this method is called as Ranjikuta method of fourth order. There is one more method which is Ranjikuta method of second order. उसमें ये दोनों नहीं है. Okay. In that case, you have to just consider k1 and k2. Okay, but that is not there in syllabus. या generally आपको fourth order के questions आते हैं. So I will so here I directly consider the fourth order Ranjikuta method. Okay, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि fourth order का मीनिंग क्या होता है. Fourth order means k1, k2, k3 and k4. So apply the fourth order Ranjikuta method to solve this differential equation dy by dx
plus equal to 3x plus y by 2, and what is given? We have given y at 0 is equal to 1 and determine y at point 1. तो आपको ये पता नहीं अभी ये y at point 1 बेसिकली होता क्या है, ये y1 आ रहा है या y2 आ रहा है या y3 आ रहा है, तो ये आपको पहले कैलकुलेट करना होगा एंड यू हैव टू टेक h इज इक्वल टू पॉइंट 1. ठीक है, तो पहले ये देखो कि कौन सा कैलकुलेशन करना है, y1 का करना है कि y2 का करना है कि y3 का करना है. टू डू दैट यू हैव टू जस्ट टेक द x0. तो x0 क्या गिवन है यहाँ पे, y at 0 इक्वल टू 1, देयरफॉर योर x0 इज 0. नाउ कैलकुलेट x1. तो x1 क्या होता है, x0 में h ऐड करो, h क्या आपका 0.1, तो अगर आप 0 में 0.1 ऐड करते हो तो आपका x1 क्या आ जाता है 0.1. तो बेसिकली y at 0.1 मतलब y at x1 होता है, तो आपको यहाँ पे y1 का कैलकुलेशन करना है. So just so the question is like this: apply the Ranjikuta method to this differential equation and calculate y1. This is the question. तो आपको यहाँ पे पहले आपने ये चेक किया कि आपको यहाँ पे कौन सा कैलकुलेशन करना है. So from the example you can really understand that here we have to calculate the value of y1. So in solution, okay, वही यहाँ पे मैंने दिया है. We have given x0 is equal to 0, y0 is equal to 1. And the formula for x1 is equal to x0 plus h, that gives you x1 is equal to 0.1, correct? Therefore here you have to calculate the y1, okay, but using the fourth order Ranjikuta method. Therefore write all the formulas for y1, okay. So k1 is this, k2 is this, k3 is this, k4 is this. This implies k is this and this implies y1 is equal to y0 plus k. ये सारी चीज़ आप एज इट कॉपी पेस्ट करो फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड. k1 इक्वल टू दिस, k2 इज दिस, k3 इज दिस, k4, k इज दिस एंड y1 इज इक्वल टू y0 प्लस k. सो हियर व्हाट इज योर f of xy, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे केस में f of x0 y0 कैलकुलेट करना है. सो व्हाट इज f of xy, सो दिस टर्म 3x plus y by 2, दिस बिकम योर f of xy. सो कंसिडर द नेक्स्ट स्लाइड. तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को ये पे राइट कॉर्नर में रख दिया है. And now we have to calculate the first value, first unknown, which is k1, and which is h multiplied by f at x0 y0. So what is f at x0 y0, which is equal to 3x0 plus y0 by 2, but x0 is 0, y0 is 1 from this, है ना. Therefore that gives you f at x0 y0 is equal to 0.5. So k1 is h, which is 0.1 multiplied by 0.5, and that gives you 0.05. So this is your first unknown. Let's calculate the second unknown, that is k2, which is equal to h multiplied by f at x0 plus h by 2 comma y0 plus k1 by 2. So just put all these values, okay. So f at x0 plus h by 2 comma y0 plus k1 by 2. x0 is 0, h is 0.1, y0 is 1 and k1 is this 0.05. So that gives me f at 0.05 comma 1.0250. So just put this x and y in this f of xy. So you will get 3 times 0.05 plus 1.0250 upon 2, that gives me 0.6625. So what is k2? 0.1 multiplied by this, that gives you 0.0663. And in similar manner just calculate k3, which is h multiplied by f at x0 plus h by 2 comma y0 plus k2 by 2. Just put all the values of x0, y0, h and k2 from the previous slide. So we will get something like this, and if I do this calculation, then and then you have to calculate f at 0.05 comma 1.0332. So that gives me 3 into first plus y by 2, that is 0.6667. Therefore k3 equal to 0.1 multiplied by this, and that is nothing but 0.0667. Now the last value, which is k4, and it is defined as h multiplied by f at x0 plus h comma y0 plus k3. Just put all these values. So as x0 is 0, y0 is 1, h is 0.1, k3 is 0.0667. So basically we have to calculate f at 0.1 and 1.0667, correct? And that is nothing but 0.8334. Just multiply this number by 0.1, that gives you k4. So k4 is 0.0833. Okay. So now we have all the values of k1, k2, k3 and k4. Therefore k is equal to 1 by 6 times k1 plus 2 times sorry, यहाँ पे typing mistake है. Okay. I will correct it immediately.
So here actually you have to consider k1. Just 1 minute. k1, k2, k3 like this. So k is equal to 1 by 6 times k1 plus 2 times k2 plus 2 times k3 plus k4. Just put all these values. So k1 is this, k2 is this, k3 is this, k4 is this, and if I simplify this, that gives you k equal to 0.0666. Therefore your y1 is equal to y0 plus k, and that gives you y0 is 1. यहाँ पे पता है आपको, ये होता है y0, ये होता है x0. So 1 plus 0.0666, and that is nothing but 1.0666. ये आपका final answer है. So here we have calculated this y1, but from the Ranjikuta method of 4th order. ठीक है, कुछ डाउट्स है? I will take one more example, but before that let me take, if you have any doubts. Is there any doubts on this part, up to this part? Any doubts are there from your side? Okay, so I will take one more example which clear this topic. So example number 2, apply the 4th order Ranjikuta method to divide by dx is equal to 1 plus under root of xy, and what is given? We have given y at 0 is equal to 1. Also determine y at point 2 where h is point 1. Correct? Okay, तो यहाँ पे आप पहले ये देखो कि यहाँ पे आपको y1 कैलकुलेट करना है कि y2 कैलकुलेट करना है कि y3 कैलकुलेट करना है. दैट यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट. So to do that, let's start with the x0. So here x0 is 0, है ना, and x1 is what? x1 क्या होता है? x0 में h ऐड करो, h आपका 0.1 है, तो x1 बिकम 0.1. अभी भी ये तो 0.2 था, मतलब ये कंफर्म क्या होगा? x2. तो x2 क्या होता है? x1 में h ऐड करो, दैट इज 0.2. तो यहाँ पे बेसिकली आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको y2 कैलकुलेट करना है. क्या आप देखो, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस. यहाँ पे मैंने कंसिडर किया. तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या बोला कि डायरेक्टली y2 कैलकुलेट करो, और आपको क्या गिवन है? x0 एंड y0 गिवन है. इसका मतलब क्या होगा? y2 कैलकुलेट करने के लिए आपके रिक्वायरमेंट क्या है? आपको x1 चाहिए और y1 चाहिए. आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, जब भी आपको y2 कैलकुलेट करना है वी नीड x1 एंड y1. x1 तो हमेशा आपके पास रहता है, x1 इज 0.1, बट y1 यहाँ पे गिवन नहीं है, या क्वेश्चन में भी कहीं पे उन्होंने नहीं बोला कि टेक दिस एज y1. अगर उन्होंने दिया होता ब्रैकेट में टेक दिस एज y1, तो ये भी नहीं दिया है. इसका मतलब क्या है कि इस एग्जाम्पल में आपको y1 भी कैलकुलेट करना है यूजिंग रंजकुट्टा मेथड, और उसके बाद y2 कैलकुलेट करना है यूजिंग रंजकुट्टा मेथड. तो ये मतलब बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, या लेंदी हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते. दिस जस्ट फॉर द प्रैक्टिस और जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग में ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ. ठीक है, एग्जाम में आपको एक तो जनरली y1 ही आता है, जनरली y1 आता है, या अगर आपको डायरेक्टली y2 का कैलकुलेशन आ रहा है तो ब्रैकेट में y1 की वैल्यू गिवन होगी, या क्वेश्चन में कहीं पे भी आपके पास y1 की वैल्यू रहेगी, तो आप डायरेक्टली y2 का कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे एज आई नीड टू कैलकुलेट दिस y2, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू कैलकुलेट दिस y2 फर्स्ट आई नीड टू कैलकुलेट y1. ठीक है, सो चल लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग. ओके, so in solution we have given x0 is 0, y0 is 1, that gives me x1 is 0.1 and that gives me x2 is 0.2. okay, यह भी आपको पता. Next, so we have to calculate y2 only using this 4th order Ranjikuta method, but to find y2 we need x1 and y1, that is we have to find first y1 by this Ranjikuta method of 4th order, जो अभी मैंने आपको explain किया था. तो let's start with the y1 first. So y1 का फॉर्मूला क्या होता है? y0 plus k, आपको पहले ही पता है, under this Ranjikuta method, and where this k is what? 1 by 6 times k1 plus 2 k2 plus 2 k3 plus k4, where k1 is this, k2 is this, k3 is this, k4 is this. Okay, so you have to remember all these formulas, then only you can try these examples. So one by one start करते हैं. ये आपका f of x y, this is your f, this is your x0, this is your y0. So first calculate k1. K1 is h multiplied by f at x0 y0, but f at x0 y0 is 1 plus under root of x0 y0, that gives me 1. So 0.1 multiplied by this, that is k1 is 0.1. Calculate k2, which is h multiplied by f in bracket x0 plus h by 2 comma y0 plus k1 by 2. Put all these values. x0 is 0, h is 0.1, y0 is
y नॉट क्या है 1, k1 is 0.1, so that is nothing but f at 0.05 comma 1.05. सारे वैल्यूज पुट मतलब just put this x and y in this 1 plus under root of xy, so you will get 1.2291 multiplied by 0.1, that gives you k2 which is 0.1229. k3 कैलकुलेट करो इन अ सिमिलर वे, आई विल नॉट रिपीट दिस स्टेप्स नाउ, ठीक है। सो आपका k3 आता है 1.2304, k4 कैलकुलेट करो, sorry, multiply by 0.1, so your k3 is actually 0.1230. so k4 calculate karo, which is h multiply by f at x naught plus h comma y naught plus k3, and that is 0.1 comma 1.1230, that gives you 1.3351 multiply by 0.1, you will get your k4 which is 0.1335. now calculate k. K is equal to 1 by 6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4, correct? That is k1 plus k2 plus k3 plus k4, that is k equal to this, है ना। जैसे k आपका करेक्ट आना चाहिए सबका, ये चेक हो जाता है। सो y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस के, y नॉट आपको पता है 1 है, k आपको पता है 0.1209 है, सो योर y1 इज दिस। तो ये हमें y1 इसलिए कैलकुलेट करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में y2 कैलकुलेट करना है। अगर आपको y2 कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको चाहिए y1। हाँ, अभी कुछ स्टूडेंट का एक क्वेश्चन हो सकता है कि कैन वी फाइंड दिस y1 बाय यूजिंग ऑयलर्स मेथड और मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड? नो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि आपको अदर मेथड का यूज करना है। यू हैव टू यूज ओनली रंजकुट्टा मेथड टू कैलकुलेट y2। तो जब भी आपको y2 कैलकुलेट करना है तो उसके पीछे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सारे नंबर्स का कैलकुलेशन भी आपको रंजकुट्टा मेथड से ही करना है। ओके, डोंट मिक्स दिस मेथड्स, ठीक है। So y1 is this now. Okay, so जैसे प्रीवियस स्लाइड में आप आते हो तो आपको क्या पता कि x1 आपका क्या है, x1 मतलब x नॉट में 0.1 ऐड करो तो x1 आपका क्या है 0.1 एंड आपका y1 क्या आ रहा है 1.1209. So just take these two numbers and now we will calculate y2 using Ranjikuta method. So in next slide, Ranjikuta method for y2, all these formulas. y2 is y1 plus k, correct? y1 आपने कैलकुलेट किया ऑलरेडी। सो वेयर k1 is h multiply by f at x1 y1, ओके, वैल्यूज पुट करो। x1 is 0.1, y1 जो अभी आपने कैलकुलेट किया था 1.1209, that gives you k1 is 1.3348 multiply by 0.1, that gives you k1 is 0.1335, फर्स्ट वैल्यू हो गई। k2 का फॉर्मूला h मल्टीप्लाई बाय f एट x1 प्लस h बाय 2 कमा y1 प्लस k1 बाय 2। x1 की वैल्यू 0.1 है, h की वैल्यू भी 0.1 है, k1 की वैल्यू 0.1335 है। सारे वैल्यूज पुट करो, आपको मिलता है f एट 0.15 कमा 1.1877। ओके, इसमें पुट करो f ऑफ x y में, यू विल गेट दैट वैल्यू एज 1.4221 मल्टीप्लाई बाय 0.1, दैट गिव्स यू k2 इक्वल टू 0.1422। चलो, so with this you can calculate k3. I will not repeat now this part, and with this you can calculate k4. Okay, so k3 is 0.1423 and k4 is 0.1503। चलो, ओके, तो आपके पास k1 k2 k3 k4 सारे वैल्यूज आ गए। सो इन नेक्स्ट step, just consider k, which is 1 by 6 times k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4, and if I put all these values, you will get your k at 0.1421. And now consider y2, which is y1 plus k. Okay, y1 आपका क्या है, जो आपने previously calculate किया था, that is 1.1209, and k जो आपने अभी calculate किया है 0.1421, and from this you will get your y2 as 1.2630. Okay, जो आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3, ठीक है। क्या क्या अभी तक हमने इस यूनिट में कंप्लीट किया है, वो बस मैं एक बार क्विकली रिवाइज या आपको मैं दिखाता हूँ डायरेक्टली। ओके, दैट इज बेटर, बस स्लाइड्स दिखाता हूँ तो आपको यह समझ में आएगा कि ये यूनिट प्रिपेयर करने में आपको कितना टाइम जाएगा। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड विद द इंटरपोलेशन,
है ना। इंटरपोलेशन में सिंपली क्या होता है, आपके पास जो डाटा आता है वो टैबुलेटेड फॉर्म में आता है ना। टैबुलेटेड फॉर्म में आपके पास डाटा आता है, फिर उस डाटा को आपको अप्रोक्सीमेट करना है बाय अ सर्टेन पॉलिनोमियल, ओके। दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस इंटरपोलेशन। तो फर्स्ट जो मेथड थी लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। इस मेथड का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसमें जो एक्साइज आप लेते हो x1 x2 x0 x1 x2 x3 के जो वैल्यूज आप लेते हो उनमें कॉमन डिफरेंस, जैसे अभी तक आप देखो लास्ट में h आ रहा था, h मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे लैग्रेंजेस मेथड में वो जो वैल्यूज आते हैं, ओके, एक्साइज के जो वैल्यूज आते हैं वो अनइक्वली स्पेस आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा उनमें कॉमन डिफरेंस रहेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस रहता भी है तो भी आप लैग्रेंजेस यूज कर सकते हो। अगर कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं होता है उस केस में भी यू कैन अप्लाई दिस लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट एज फार एज इंटरपोलेशन इज कंसर्न। तो यहाँ पे बस आपको एक लैग्रेंजेस पॉलिनोमियल कैलकुलेट करनी है, L0 L1 L2 L3 लाइक दिस, ठीक है। और फिर y0 y1 y2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा। L0 कैसे कैलकुलेट करना है, जस्ट स्किप x0, है ना। मतलब क्या करना है, x में से x, जब भी आप L0 कैलकुलेट करते हो x में सारे नंबर सब्ट्रैक्ट करो एक्सेप्ट x0 और इन डिनोमिनेटर x इक्वल टू x0 पुट करो। ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। एंड देन these are the examples। टैबुलेटेड फॉर्म में डाटा होता है, आपको y कैलकुलेट करना है, मतलब वो पॉलिनोमियल कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। ये बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल अगर रॉन्ग आती है तो सारा कैलकुलेशन रॉन्ग होगा, ओके। न्यूमेरिकल मेथड्स में, ओके, मतलब प्रिपरेशन के लिए इजी टॉपिक है, बट स्कोरिंग के लिए उतना इजी नहीं है, ओके। क्योंकि 70-80% स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनकी मिस्टेक हमेशा कैलकुलेशन में होती है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक रिस्की है। अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी, बट यू नीड मोर प्रैक्टिस टू गेट दैट टोटल होल्ड ऑन दिस थर्ड यूनिट, ठीक है। तो ये लैग्रेंजेस का पहला पार्ट था। फिर उसके बाद हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड का फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंशिएशन फार्मूला, डिफरेंस फार्मूला, वो डिफाइन किया था। न्यूटन फॉरवर्ड जनरली टॉप ऑफ द टेबल वैल्यूज के लिए यूज होता है, एंड न्यूटन बैकवर्ड जनरली बॉटम ऑफ द टेबल के लिए यूज होता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से बोलता हूँ। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 0.5 के लिए सॉल्व करना है, x इक्वल टू 0.5 ये टॉप ऑफ द टेबल आ रहा है, क्योंकि 0 और 1 में ही आ रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड से आपको जाना है, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। यू कैलकुलेट करना है बेसिकली x माइनस x0, डोंट रेफर दिस फॉर्मूला, x माइनस x0 बाय h मैंने दिया है सारा यहाँ पे, या ओके, x माइनस x0 बाय h। एंड फिर एक डिफरेंस टेबल कंसिडर करना है, सब्ट्रैक्ट करके जो ऊपर के वैल्यूज आते हैं 1 4 16 39 माइनस 9, ये आपके रिक्वायर्ड वैल्यूज है। y0 डेल्टा y0 डेल्टा स्क्वायर y0 डेल्टा क्यूब y0 डेल्टा रेज़ टू 4 y0, ठीक है। एंड बस ये वैल्यूज पुट करो फॉर्मूलेज में, हो गया, ठीक है। एंड इन अ सिमिलर मैनर यू हैव टू कंसीडर द न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, जिसमें ये बॉटम के वैल्यूज आपको कंसीडर करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे u क्या होता है, x माइनस xn लास्ट वैल्यू अपॉन h। बट इन दोनों मेथड में जो एक्सरसाइज आपको गिवन रहते हैं उनमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। जैसे आप देखो 1 2 3 4 5 इनमें कॉमन डिफरेंस है 1, ओके। इन्हीं केस में ये न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट सेक्शन, ठीक है। ये बस आप एक गो थ्रू करो, ओके। ये जो टॉपिक मैंने लिया था, फाइनाइट डिफरेंस एंड डिफरेंस ऑपरेटर, ओके। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर MCQs आर कंसर्न, ठीक है। तो एक्चुअली ये स्किप करने वाला था, बट वी डोंट नो द पैटर्न ऑफ अवर एग्जाम, सो that's why I have taken all the, मतलब I have taken the 100% part of this unit 3, ठीक है। So you can just go through this, is all formulas, ठीक है। And the next section is numerical integration, where we have to learn the trapezoidal rule, Simpson's 1/3 rule and Simpson's 3/8 rule। तो ये सारे सिंपल रिजल्ट है। ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला हमेशा सारे फॉर्मूले में फर्स्ट और लास्ट की एडिशन करनी है, एंड प्लस 2 टाइम्स द रिमेनिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय h/2। सिम्पसन्स में h/3 लास्ट 2 नंबर्स की एडिशन, 2 टाइम्स इवन प्लस 4 टाइम्स रिमेनिंग, 2 टाइम्स इवन 4 टाइम्स रिमेनिंग। सिम्पसन्स में 3h/8 लास्ट 2 एडिशन, 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स रिमेनिंग, 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स रिमेनिंग, लाइक दिस। और यहाँ पे इंटरवल कैसे डिवाइड करनी है उसके लिए आपको h चाहिए, तो h गिवन होता है तो आप 0 से स्टार्ट करो, 0 में h ऐड करते जाओ जब तक आपको 1 नहीं मिलता है तब तक। तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 1, तो वहीं पे आपको स्टॉप करना है।
एंड फिर उसके करस्पॉन्डिंग y कैलकुलेट करो, आपके पास फंक्शन है x इंटू वी रेज टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर बस फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करके आपको आंसर मिलता है। ये इजी टॉपिक है, मतलब ट्रिवियल चीज़ें ये सारी, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक्स थे ना, अगर मैं आपको नोट्स भी देता, मतलब जस्ट मैंने आपको ये पीडीएफ भी शेयर आपसे की होती तो भी आपको ये समझ में आ जाता। कुछ ऐसे एग्जांपल्स रहते हैं जहाँ पे h गिवन नहीं होता है, तो उसके जगह पे ये स्टेटमेंट आता है, इंटरवल डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ओके, तो आपको करना क्या है, h का इन जनरल फॉर्मूला क्या है, एंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, मतलब b माइनस ए अपॉन दैट टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जिसमें आपको डिवाइड करना है। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में, तो इसलिए नीचे 4 आ रहा है, b माइनस ए मतलब डिफरेंस बिटवीन दिस लिमिट्स, तो h की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट h इज पाई बाय 8। तो ऐड करते जाओ 0 में पाई बाय 8 जब तक आपको पाई बाय 2 नहीं मिलता है तब तक, तो यू विल गेट दिस। तो ये डिवाइड कैसे करना है वो अगर समझ में आ जाता तो इसमें कुछ नहीं है। एंड देन कम टू दिस लास्ट मेथड, ऑयलर्स मेथड, जिसमें आपको बस y1 y2 y3 का कैलकुलेशन करना है ऑयलर्स में। ओके, डिपेंड है कि मतलब ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ तक जाना है। x इक्वल टू 1 मतलब आपको 0.2 से अगर आप ऐड करते जाते हो तो x5 तक आपको जाना पड़ता है। x5 पे आपकी वैल्यू 1 आती है, मतलब आपको y5 तक कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपने y5 तक कैलकुलेशन किया, तो ये आपको ऑलमोस्ट ये सारे एग्जाम्पल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कहाँ तक आपको जाना है, y1 करना है या y2 करना है या y3 करना है या y4 करना है। दैट इज द मेन आइडिया। मॉडिफाइड ऑयलर में इसमें बस क्या होता है कि फर्स्ट वैल्यू ऑयलर से करो, उसके बाद सारी चीज़ें मॉडिफाइड से करो, मतलब ये फॉर्मूला। तो इसमें भी y1 का ये फॉर्मूला याद रखो, y2 के फॉर्मूले में बस x0 की जगह पे x1 होता है, y0 की जगह पे y1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये अच्छे से देखो कि y1 करना है या y2 करना है या दोनों करना है, ठीक है। एंड रंजीकुटा मेथड में भी सेम था, ठीक है। रंजीकुटा मेथड में भी सेम है, आइदर y1 या y2 का आपको कैलकुलेशन करना है, बट दैट यू हैव टू कैलकुलेट इन प्रायर, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी।